Please help me welcome Naveed Raza. हमारे माँ बाप जो थे ना हमें जगह आगे कर देते थे। तो बेटा गाना आता है ना सुनाओ वाला, डांस आता है ना वाला दिखाओ ना करके। अब मैं भी शौक में मैंने चश्मा लगाया काला और मैंने टेबल पे खड़े होके गाना गा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी गागर, और पूरा वो रेस्टोरेंट मुझे देख रहा है, तालियां बजा रहे हैं और मेरे माँ बाप खुश हो रहे हैं कि यार देखो यार। तो इंडस्ट्री में दोस्ती और कंपटीशन को साथ कैसे बैलेंस करते हैं? कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो घर में भी होता होगा, आपकी बहन है, कपड़ों में कंपटीशन होता है, देखा। आफ्टर आवर्स में मैंने एक सवाल किया है कि हमारे स्क्रिप्ट्स में आदमी सिर्फ टर्की ही क्यों है, वो और कुछ क्यों नहीं है, वो किसान, वो मजदूर, वो एक मेहनत करने वाला बाप क्यों नहीं है। Welcome to another episode of After Hours. I'm very pleased to see you again this evening. We were gup-shupping, my next guest and I, about mental health. इस शो पे हमने mental health के बारे में काफ़ी बात की हुई है, लेकिन I don't think कि लोग realize करते हैं कि mental health उनकी physical health को कितना affect करती है। जैसे if you're stressed, अगर आपके cortisol levels high हैं, तो you're prone to insomnia, you're prone to heart disease, you're prone to hormonal imbalances, and जब आप नहीं सोते और आपके hormones ख़राब होते हैं, तो that leads to all sorts of problems. Dementia for one, when you're older, Alzheimer's. My next guest is not a psychiatrist, but he is very adamant in speaking about mental health. He's a great actor. He's had a great career, and he's kind of a staple face on TV now. You know, we see him in many things, and he's always making us laugh, sometimes making us cry. And I'm happy to call him a friend. Please help me welcome Naveed Raza. Hello, hello. How are you? Are we shaking hands? We are. We're shaking hands. Aajaiye. Naveed, you're such a great actor. हमने काम किया हुआ है शायद एक टेलीफिल्म में। हमने टेलीफिल्म में साथ काम किया था, मी, यू, अली सफीना एंड जनान, आई गेस। जनान For I Dreams. Oh my God. That was a hilarious one. That was a hilarious one. And Janan and I were in an apartment or something. ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही कुछ था। You know, I love working with her. I miss working with her. उसके साथ one of the best energies to work with. She's so amazing, and उसके साथ on-screen chemistry I feel बड़ी this is unfortunate for our industry के जनान जैसे लोग कम दिखते हैं स्क्रीन पे. It's our loss. Yes, it's our loss. I think हम पता नहीं क्यों एक likes और views के झमघट्टे में पड़ गए, followers के झमघट्टे में पड़ गए. We're really missing out on some important talent. But you're a brilliant actor. Thank you very much. But unfortunately, मैंने आपका intro सारा mental health पे बना दिया. I would love to talk about it. I know this. Reason being, your wife is a clinical psychologist. She has a PhD. लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी psychology और ये तुम्हारी डिग्री फेल है क्योंकि तुमने इससे शादी कर ली. कि अगर तुमने सही से पढ़ा हुआ होता तो तुम शादी नहीं करती. उसने कहा फिर ये मेरा केस है ना पूरी जिंदगी के लिए. तो वो एक्चुअली उसका जो आखिर में आई यूज्ड टू वर्क, आई वाज इन, मैं गवर्नमेंट नौकरी में था, हेल्थ मिनिस्ट्री में था. आई वाज अ 17th ग्रेड ऑफिसर. आई नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो. माशाल्लाह. वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशंस एज HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, जहां हमारी मुलाकात हुई थी उससे, मेरी बीवी से मेरी. तो वो डाटा कलेक्ट करना था उसको अपने PhD की फाइनल डिग्री के लिए कि एंजाइटी इन HIV एड्स पेशेंट्स. तो वो मैं डाटा कलेक्ट करा रहा था और डाटा कलेक्ट कराते That's such an interesting thing, anxiety in HIV patients, because if you have HIV, it's almost a death sentence. It is. So but you know, from outside the world, लगता है कि it's a death sentence. लेकिन जो रह रहा होता है, it's more up now. HIV तो is manageable now. It's more like a sugar. Yeah, अब तो बहुत manageable. ARVs होती हैं, उसकी medicine होती हैं. What's his name? That Magic Johnson has it, and he's been living for 20 years, something. Yes. But actually, there are medicines called ARV. Okay. Yeah, these are the drugs that you have to take every day. For the rest of your जिंदा life. रहने के लिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही होती है. इससे फिर आप दूसरे को स्प्रेड नहीं करते हैं HIV? नॉट खाने पीने से नहीं, साथ बैठने से नहीं, मिलने जुलने से नहीं. If you're a married person like Magic Johnson is. लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि 80% 90% पार्टनर्स भी डायग्नोज्ड हो जाते हैं.
सेम उस डिजीज़ से, लेकिन कभी कभी अल्लाह की तरफ से कुदरत ऐसी है कि पहला बच्चा या जो बच्चे उनके होते हैं वो नहीं HIV पेशेंट्स होते हैं। बहुत दफ़ा भी ये देखा गया है। आई नो कि सिंध में एक एपिडेमिक था HIV का। आई थिंक स्टिल है, हमने अब बात करनी छोड़ दी। अरे हमने बात करनी छोड़ दी है, हमने उस पर फोकस करना छोड़ दिया है, हमने पोलियो पे बात करनी छोड़ दी है, हमने बहुत सारे मसलों पे बात करनी छोड़ दी है। दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया है, हम आज भी पोलियो पे डिस्कशन करते हैं, हम आज भी पोलियो के लिए कैंपेनिंग करते हैं। तो हमें बहुत, और आज भी जो पोलियो के कतरे बेचारी पिलाने जाती हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। क्यों? मुझे, मेरा बेटा 2 साल का है अभी, माई सेकंड बॉर्न, तो वो आती है मेरे गेट पे पिलाने, तो उन्हें तस्वीर भी खिंचवानी होती है, तो मैं खुद भी जाता हूँ उसे पिलाने, क्योंकि बेटा है, हैंडल नहीं हो रहा होता सबसे। तो वो 2 महीने में 3 महीने में आते हैं। देखें, इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ना, तो व्हेन दे पास द स्टूल, तो उसमें पोलियो वायरस निकलता है। जो उन बच्चों में होता है, या फिर मेडिसिन से उसको क्लियर आउट करते हैं। तो वो पोलियो वायरस फिर आपके ड्रेन्स में होता है, आपकी सेवरेज में होता है। तो जो बच्चे, उनका एक्सपोजर हो जाता है उस वायरस से, और उन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए होते, Oh my God. तो उनकी बाकी की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अरे ये कोई क्यों नहीं, What's wrong? I think हमारे अपने एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है, नहीं हमारे प्रॉब्लम है, हमें सब कुछ पता है ना, हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमें सब कुछ आता है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता, हर आदमी के पास मशवरा है, हम सुनते कम है, हम बताते ज्यादा हैं। Yeah, that's true. जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि यार दूसरी साइड पे चल क्या रहा है। So I guess that's just the mentality, your mentality से मुझे sadly subcontinent. Talk to me why mental health is so important to you, क्योंकि आप कैंपेन भी करते हैं, you raise awareness for it. Why is it so important to you? यार, I think it's very important. Mental health के बारे में ना मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले जो थेरेपी की, जैसे तुम अभी इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी, घर से शुरू होता है। हमें घर में लोग नहीं मिलते बात करने के लिए, हमारे घरों में माहौल ऐसा रखा जाता है कि पता नहीं प्रिंसिपल और टीचर्स और पता नहीं हम किन के बीच में रह रहे हैं, सेफ स्पेस नहीं है हमारे। अगर एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो पहले होता था, अगर हम बात करें अपने बच्चों से, पूछें उनका दिन कैसा रहा, क्या मसले हैं, क्या हो रहा है, क्या कोई तंग तो नहीं करता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज़ इट अ गुड टच और बैड टच, समझाएं उनको। हम यही बात नहीं करते बच्चों से। अब छोटी सी मिसाल है, मैंने एक शो किया था अब्यूज़र्स पे, कि अब्यूज़र्स होते कौन है। एक्चुअली देखो, जो ज़ैनब वाला वाक़या था, चीज़ें हमें बहुत थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। अब्यूज़र कोई पैदा तो नहीं होता ना, वो पैदा तो नहीं हुआ होगा अब्यूज़र, या तो उसका कोई ट्रॉमा होगा बचपन का जो स्पॉट छोड़ गया, या फिर मेंटल चैलेंजेस थे कि वो उस तरफ चला गया। तो ये सोसाइटी को देखने की ज़रूरत है। घर, माँ बाप को कैसे नहीं पता होता कि उसका बच्चा किस तरफ जा रहा है, माँ बाप को पता होता है, माँ बाप को। मैंने जब, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम माओं को अक्सर पर्दा डालने की आदत है। एक्चुअली हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ माएँ बेटों की 90% शादियाँ इसलिए करती हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दूसरी की। मेरे खुद अपने फैमिलीज में, खानदान में, फ्रेंड्स में ऐसे केसेस हैं कि वो अल्लाह का शुक्र है कि अब माँ बाप में, पेरेंट्स में, घर वालों में इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो बेटी को घर बुला लेते हैं वापस, वरना तो उस इशू को सुनना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, स्टे देयर। शादी करने से वो लड़का कैसे ठीक हो जाएगा जब पूरी जिंदगी ठीक नहीं था। मेरी बेटी पहले पैदा हुई तो वो मतलब बेटी थी तो बड़ा उसका भी ख्याल रखते हैं, आंखों को, मतलब उस शी कम्स फर्स्ट इन एवरी वे। अब मेरा बेटा हुआ है तो बेटी अगर सीढ़ी से भी गिर जाती है तो पूरा घर उसकी तरफ भागता था। अब ये सीढ़ियों से गिरता हुआ भी आ रहा होता है ना नीचे, छठे स्टेप पे मैं बैठा हुआ से यूं देखता हूँ, मैं कहता हूँ उठ गया वापस। I've heard this कि पहले बच्चे के साथ प्रोटेक्टिव। मुझे आज भी याद है, मेरी बेटी बेड से गिर गई थी, 1 साल की थी, मतलब मैं पूरे खानदान के डॉक्टर्स को फ़ोन कर दिया, पाकिस्तान से लेके US तक, और लेके गली में बाहर चला गया, गाड़ी में लेके निकल गया, और इमरजेंसी तक जाने के लिए मैं निकल गया, हॉस्पिटल चला जाऊँ, ये गिर गई है, रो रही है, पता नहीं। ये बेचारा हर दूसरी नाइट बिस्तर से गिरता है, और हम अब चलने लग गए तो हम कहते हैं खुद आ जाएगा ऊपर। वरना पहले गिर गया था, बे यार ये खुद भी नहीं आ सकता, अब इसे उठाओ। सेकेंड बॉर्न इज ऑलवेज द नॉटीएस्ट एंड द टफेस्ट। और फिर बेटा हो तो आप कहते हैं, अब पहली वाली की वैक्सीन होनी होती थी तो मैं शूट से ऑफ लेके बैठा हुआ होता था। एक हाथ में आइसिंग का पूरा बैग है, मतलब उसको जो जो चीज़ें पसंद है दूसरे बैग में वो सब कुछ है, ताकि वैक्सीन जैसी लगेगी सारा जो शशका शेबैंग सब। ये वाले को घर पे आता है, उसने यूं करके लगाया, मैं यूं करके टांग पकड़ के और आगे कर देता हूं। मैं कहा जल्दी से लगाओ, मेरा कॉल टाइम है, मुझे शूट पे जाना है, मुझे शूट पे जाना है। यूं टांग करके उसके दी, बाबा मैं लगाओ।
अब इंशाल्लाह जब उसकी शादी होगी तो ये क्लिप लगाएंगे. You are so loved. Here's your wedding speech. तो वो इतना ही दीवाना है. तो मेरी बेबी अक्सर कहती है तुम इसके साथ जो कर रहे हो ना, तुम देखना तुमसे बड़ोगे, हमारे साथ तुम्हारे साथ यही सब करेगा. I love him but I'm making him tough. क्योंकि बच्चे आजकल ना, हमारे यहाँ आजकल के जो बच्चे हैं ना, सॉफ्ट हो गए, नर्म है, बिल्कुल नर्म है. ऑनेस्टली अब रोड क्रॉस करनी नहीं आती, दुकान वाले से बात करनी नहीं आती. तो मैंने अपनी बेटी को, जैसे हम बात करते हैं ना किक बॉक्सिंग की, तुम भी आती थी, मैंने उसको किक बॉक्सिंग शुरू करा दिया. मैंने कहा कम से कम हाथ पैर चलाने तो सीखो. वेरी नाइस. क्योंकि उसको 2 शौक है मेरी बेटी के, खाना और घूमना. हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 9. शी इज 9 ऑलरेडी. शी इज 9 ऑलरेडी. और कोविड के बाद से ये बच्चे ना ईटर हो गए. ये हम सब कोविड के बाद they just love to eat, they love to eat everything. खचर. तो मैं घर पे बैठा हुआ होता हूँ ना, तो आवाज जाती है कि ये चाहिए, वो आ जाता है. फिर मैं 1 घंटे बाद कहता हूँ अभी तो खाया था, ये दूसरा है. I was munching. कि कौन सी मंचिंग हो रही है जो खत्म नहीं हो रही है? Growing ना. She is growing. तो फिर मैंने उसको एक एक्टिविटी में डाल दिया. बॉडी डिस्मोर्फिया ना दे देना बेचारी को. नहीं, I'm not. घर में कभी हम ऐसा नहीं बोलते कि जैसा हमारे खानदान में होता है. इनफैक्ट मेरी अम्मी, हमारी दादी, नानी, अम्मी, हम ये इनका ना प्यार जो होता है वो ये होता है, मोटी नहीं हो गई या फिर कमजोर हो गई हो. तुम कमजोर क्यों हो रही हो? कमजोर क्यों हो रही हो? अल्लाह, मेरी माँ भी नींद नहीं हो रही. आई डोंट थिंक मेरी माँ ने मुझे कभी भी देख के मुझे खुश हुई है. या तो थोड़ा सा वजन बढ़ा है, और वो बहुत जिंदगी में कम उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बड़े फ्रूट्स खाओ, गंद बलामत खाओ, या फिर कमजोर हो गई हो शक्ल देख के. मेरी अम्मी को मैं होती तो मैं अम्मी को बताने की कोशिश करता हूँ ना कि देखें ऐसा ना करें, ये खाएं, चलें, मैग्नीशियम खाएं, ये खाएं, वो खाएं. तुम शोबिस में आने के बाद बदतमीज नहीं हो गए हो बहुत? अम्मी मैं आपको सिर्फ कुछ बता रहा हूँ ये करने के लिए कि मुझे क्यों मत बताओ, मुझे पता है क्या करना है. अब जैसे ही मैं घर से पेरेंट्स को पता भी तो होता है ना, सब पता होता है. पराठे खाने का शौक है इन लोगों को. दे लव जंक, सारा देसी कड़ाई. हमें कहते हैं बाहर जंक ना खाओ, और कुछ जितनी रोटियां और पराठे. माय गॉड, पेरेंट्स आर unmatchable and uncatchable. We're going to miss this generation. It's going to be. This is the last generation. But मजेदार जनरेशन जो है ना, ऐसा लगता है वो हम हैं, क्योंकि हम मिडिल में है ना. हम मिडिल में, हमने पूरी दुनिया की ट्रांजिशन देखी है. हमने फोन आते हुए देखा है. हमने आईफोन देखा है. हमने वीसीआर से लेके सीडी देखी है, सीडी से यूएसबी, और यूएसबी से ऑनलाइन. हम एक्चुअल एनसाइक्लोपीडिया से चैट जीपीटी पे आ गए. हम एनी शाहिद हैं. एनी शाहिद नहीं तो वो एक जैसे एक है आई विटनेस कहते हैं. एनी शाहिद, आई विटनेस. आई लर्न समथिंग न्यू. ड्रामों में कहते हैं ना कि यार एनी शाहिद. तो ड्रामों में अक्सर मैं सीन करते करते मजाक कर देता हूँ कि इस मौके की ये एनी शाहिद है. मैंने कहा एनी तो है, शाहिद कहाँ है? Very nice. I'm going to take a question from our audience. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, because मैं भूल जाती हूँ. कौन पूछ रहा है पहला सवाल? जी, लेडी इन रेड. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप बताएं. सर मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आजकल टैलेंट से ज्यादा नेटवर्किंग मैटर करती है इंडस्ट्री में? पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया में. Not in this industry, in every field, everywhere. इनफैक्ट हेयर ऑल्सो. अगर आप इनको नहीं जानती होती ना, कोऑर्डिनेटर को, तो आप यहाँ ना होती. आपकी दोस्ती कैसे, तो आपकी दोस्ती है तभी तो आप फिर यहाँ तक पहुंची. तो नेटवर्किंग भी जरूरी है. फिर एक हद तक कोई आपको पुश कर सकता है. दुनिया में मिसालें देखी गई हैं कि प्रिविलेज्ड होते हैं लोग, जो उनको मौका दिया जाता है, आगे पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर टैलेंट और चीज़ें ना हों, फिर आप कैसे आगे आएंगे. जैसे मैं एक छोटा सा एक वाकया शेयर करूंगा उष्णा के साथ. उष्णा did a very challenging project and it was called Bashar Moment. Oh God, yes. इस पे तालियां बनती हैं. मैं उस प्रोजेक्ट को मैंने बनते हुए देखा है. मैं कभी कभी इसके सेट्स पे भी आता था. जिस तरह से उष्णा ने अपने स्टार्ट में उस ड्रामे में काम कर लिया था ना. The director was a tyrant. It was. My God, सो गई. देखा, सुन के सो गई. मैंने फिर उनके साथ एक और भी किया प्रोजेक्ट. मुझे बड़ा मनाया गया 7 साल बाद, और मुझे उन्होंने खुद कन्विंस किया कि मैं बदल गया हूँ. आखिरी मैंने किया उनके साथ, उसके बाद वो चले गए. आखिरी मैंने किया उसमें. मेरा दिल मेरा दुश्मन. आखिर कब तक? मेरा दिल मेरा दुश्मन हमने कोविड में किया उनके साथ. उसके फौरन बाद आखिर, आई थिंक मैंने आखिर कब तक उसके बाद था. यस यस. और उसके बाद फिर वो चले ही गए. फिर वो आ रहे सुना वापस आए थे, फिर चले गए. यस यस. या तो बशर मोमेंट में उष्णा ने बहुत मेहनत की थी. उष्णा उस वक्त नहीं थी, भले लोग जानते हो या चीजें हो, लेकिन अगर उस ड्रामे में उष्णा मेहनत करके अपना आपको प्रूफ ना करती तो आज यहाँ ना होता. तो आपको मौका दिया जाता है, लेकिन आपने मेहनत करनी है. But there's also किस्मत attached to it. Yeah, luck has a big thing. Oh yes, in this industry, yes. ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो आज हैं ही नहीं.
जॉर्ज, और जो मेहनती भी हैं, बहुत मेहनती, और जैसे हमने शो के स्टार्ट में बात की, जिनान आज कहीं और होनी चाहिए थी। You know, I feel like अगर आज हमारी इंडस्ट्री OTT बेस्ड होती ना, जैसे इंडिया की है, हम कहीं तो और उस तरह हम कहीं और होते, बिकॉज इंडिया में भी वो अब द मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट, एंड आई थिंक अनुराग कश्यप हैज़ अ लॉट टू डू विद इट, फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर, वही फेसेस अब आपको इन सीरीज में नजर आएंगे। तापसी होगी, नवाजुद्दीन हो गया, राजकुमार, कौन, राजकुमार राव हो गया, आयुष्मान, who's the one I really like, आयुष्मान भी हो गया यार, लूडो में जो था, he was also in वासेपुर। हाँ, वो फजल। It's gonna kill me, I know his name so well, P से शुरू होता है। पंकज त्रिपाठी, yeah. And so all देखिए, ये सारे वो लोग थे जिनको मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं मिलता था, और ये अब they're the kings of Bollywood। और ये OTT ने इंडिया में एक चीज साबित की कि उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा खत्म कर दिया। यश चोपड़ा, यश राज, करण जौहर टाइप सिनेमा खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब अब वो सिनेमा रहा नहीं। हम करण जौहर की जिस तरह की फिल्म्स देखते थे, लार्जर देन लाइफ, और अब देखी नहीं जाती, बिकॉज अब रियलिटी आ गया। सो आई फील लाइक एक्टर्स लाइक योरसेल्फ, लाइक जिनान, so many amazing actors would have just the best platform अगर हम वहाँ जाए। I think हम वहाँ आ रहे हैं। हम आज I'm sure हम आ रहे हैं, और जिस तरह की सोच अब बदल रही है, जिस तरह का कंटेंट बदल रहा है, शुक्र। हर आदमी की 2 बीवियाँ, एक नॉर्मल बीवी, एक मासी से शादी, एक बाहर अफेयर, एक घर में। मतलब हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, हमें उस कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, हमें इस मसले से बाहर निकलना पड़ेगा कि घर में मतलब क्यों ये आदमी सिर्फ ठरकी क्यों है मतलब कुछ और क्यों नहीं कर रहा है आदमी, कुछ और क्यों नहीं कर रहा है। I have to take a short break, लेकिन ब्रेक पे आप जाइए उस कैमरे में देख के बेशक, और अपना सवाल भी जो आपने लास्ट पूछा है वो पूछ के जाइए। इस पे बहुत बड़े सवाल आने वाले हैं। आफ्टर आवर्स में मैंने एक सवाल किया है कि हमारे स्क्रिप्ट्स में आदमी सिर्फ ठरकी ही क्यों है, वो और कुछ क्यों नहीं है, वो किसान, वो मजदूर, वो एक मेहनत करने वाला बाप क्यों नहीं है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम इसका जवाब देंगे ऐसा क्यों नहीं है। आप एक 17th ग्रेड ऑफिसर थे। यस, हेल्थ ने था, छोड़नी पड़ी एक्टिंग की वजह से। या तो क्या मौत आई थी? ये मैं आज तक अपने आप से अब नहीं समझ में आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा। And you could have gone up in the grades also. I know, I was doing. And then I could have had made you sign all my documents, वो जो high grade officer से sign करवाता। मैं करता था टेस्ट लोगों के लिए सबके। यार I don't know, there was this show called, शौक तो था मुझे, मैं एक दिन घर ऑफिस से आके बैठा एंड अली जफर का एड चल रहा था कि आप में है हीरो बनने की तरंग। मैंने ऑफ कोर्स यस, द तरंग इन 2017, yes. 2009 सॉरी 2017। तो मैं उसमें मैंने एंट्री डाल दी, आफ्टर आउट ऑफ लाइक 10,000 एंट्रीज 100 got selected, 100 में से 10 got selected for the show में से 1 मैं जीत गया। उसके बाद मुझे लगा कि बस अब ये नौकरी कौन करता है यार। और तो मैंने कहा जैसे वो बॉस पूछते थे, मतलब एक मेरे गोरे बॉस थे, एक लोकल थे, तो लोग गोरे वाले समझते थे, उन्हें समझ में आ गया था ये नहीं रुकेगा। जो लोकल वाले थे वो घसीटते हैं ना आपको कि आपने करना है। तो मैं कभी लेट गया, कभी किधर के, यार क्या आप आ नहीं रहे हो, आपने शो नहीं देखा था मेरा, इजी टेक इट इजी, आई एम स्टार नाउ। तो फिर मैंने सैयद नूर साहब की फिल्म की, उसका इनाम था सैयद नूर साहब की फिल्म। मैं वो फिल्म करने गया, मुख्तारा माई के ऊपर बनी थी प्राइस ऑफ ऑनर। वाओ, मैं वो फिल्म करके आया, उसके बाद मैंने कहा नाउ अब ये से फोन बजेगा, मैंने फिल्म करके आ गया हूँ। लोग ड्रामों से शुरू करते हैं, मैंने फिल्म से शुरू किया। 3-2 महीने तक किसी ने मुँह ही नहीं लगाया किसी को नहीं पता था मैं कौन, भूल गए सब, शो खत्म, भूल गए सब। There is this guy I always mention him in the shows, Humayun Saeed. Please clap for him. We've heard of him. Yeah. नाम सुना हुआ। वो मुझे शो पे कह के गए थे, तो जब इन सब चीज़ों से फारिग हो मेरे पास आना। मैंने कहा वो वक्त आ गया है कि जाना पड़ेगा, लोगों के पास नौकरी भी छोड़ दी है, मैं क्या करूँ अब। घर वाले भी यूँ करके देखना शुरू हो गए थे, क्या इरादे हैं कब तक मतलब वो इंडियन फिल्मों में नहीं होता, खाने की टेबल पे बैठे हैं, अबू माय फादर वाज इन PIA, तो वो पेटे में क्या इरादे का मतलब होता है क्या करना है भाई कब तक पैसे चाहिए। तो शरीफ लोगों का जो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो शरीफ लोग थे, तो वो पूछते हैं क्या इरादा है, जैसे हम होंगे हम ये पूछेंगे कब तक आओगे हमारे पैसे
कब तक कमाओगे अपना? तो हमारे अपने भी खर्चे हैं, हमें घूमने भी जाना तो है। आप अपनी बीवी से मिल चुके हुए थे ना? ना, मैं मिल चुका, चल रहा था। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन चल What a रही। great way to take a रिश्ता. I have left my job in the United Nations. Yeah. And अच्छा, उसके फादर taken a was used to work for the same कंपनी, और वो इसी UNDP का हिस्सा थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और सब कुछ वो चल ही रहा था। वो भी हमें जानते थे, हम मतलब काम के हवाले से सब एक दूसरे को जानते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि हम सब दोस्त हैं और चीज़ें चल रही हैं सारी इस तरह से। तो मैंने एक्टिंग शैक्टिंग शुरू कर दी, नौकरी छोड़ी थी। जब रिश्ता भिजवाया था तो उन्होंने कहा ये नौकरी नहीं करता था कहीं। अब अदाकार है सिर्फ। खैर, तो अच्छा, so then you went to हुमायूं सईद भाई के पास गया, मैंने उनका दरवाजा यूं करके खटकाया। उन्होंने क्या हाल है? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा मैम आपने कहा था आना है। कह रहा डन, अभी 1 मिनट बैठो। एक ड्रामा शुरू हो रहा था, महमूदाबाद की मलकाएं, सज्जल, मी एंड सबूर डेब्यूटेड फ्रॉम दैट ड्रामा। तो हमने फिर वहां से करियर शुरू किया। तो ड्रामों से फिर वो चीज शुरू हुई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आई थिंक हुमायूं भाई ने तालियां फॉर हुमायूं। अब देखो नवीद, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दिस इज ग्रेट ऑफ हुमायूं एंड ही इज वेरी नाइस दैट वे, बट इट्स व्हेन दे रिकॉग्नाइज टैलेंट। और अगर आप 10,000 लोगों में से आपकी 100 में शो में उन्होंने देखा तो तभी और आप 100 लोगों में से यू कम फर्स्ट, देन आई थिंक योर टैलेंट इज स्पीकिंग फॉर यू, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग testament to your craft. जब ऊपर से आपके ऊपर एक लाइट पड़ जाती है ना, तो वो लोगों को दिखना भी शुरू हो जाते हैं, और जब नहीं पड़ती तो नहीं दिख रहे होते। तो कितनी फिल्में की हैं यार? आई हैव डन फर्स्ट विद सैयद नूर साहब। हाँ जी। देन मैंने उसके बाद, और कौन था? नई लड़की थी एक खातून, उसमें सारे वो टिपिकली पंजाब से लोग थे। तो आई वाज ओनली द गाय फ्रॉम कराची, तो सब उधर के ही लोग थे, और लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी थी वो। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने क्यों नहीं बनाई, तब के तरंग इन्वेस्टेड इन इट। और फिर मैंने की साहिल लोधी साहब की एक फिल्म रास्ता आई थी, मैंने वो की। फिर हुमायूं साहब की जवानी पढ़नी आनी में गेस्ट अपीयरेंस की। फिर आई हैव डन खेल खेल में नबील कुरैशी की, जो मैं, बिलाल और सज्जल ने अभी हम की थी एक फिल्म अबाउट बांग्लादेश। फिर उसके बाद मैंने चक्कर की विद दानिश यासिर नवाज साहब। सो you're a film name. फिर मैंने खुद एक अपनी की, लीच, जो अभी पिछले साल रिलीज हुई। लीच, अच्छा, what is लीच? एनवायरमेंटल चेंज एंड इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज, कि हम कब्जा कर करके जो ज़मीनों पे घर बनाए जा रहे हैं, तो ये जंगल ख़त्म हुए जा रहे हैं, ये जानवरों के लिए जगहें ख़त्म होती जा रही हैं, और हम दरख्त काटते जा रहे हैं। तो उस टॉपिक पे हमने फिल्म बनाई थी। बाय द वे, इट्स द सेकंड पाकिस्तानी फिल्म ऑन Amazon राइट नाउ। What? It's on Amazon? It's on Amazon. Oh my God! And it's such a great subject matter to tackle. और उसकी वजह से मैंने बहुत सारी मुश्किलें भी उठाई यहाँ पे। मेरी सेंसर में और चीज़ों में फिल्म को बहुत परेशान किया गया, एनवायरमेंटल के ऊपर बात करने पे, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे बात करने पे। इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री। हमने उसका कॉन्सेप्ट ये दिखाया था, एक लड़के, इसी तरह मिस्टीरियसली मर्डर्स हो जाते हैं जब इन बातों को छेड़ा जाए तो देख के। तो हुआ ये था, हमने ये दिखाया कि एक लड़के का गाँव काट के, मार के, उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया, और वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई। तो इस लड़के पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जब उसका घर जल गया, उसके बाप को मार दिया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। तो उसने कहा कि अब मुझे उन सब लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरा घर जलाया है। तो कहीं ना कहीं वो विलन था नहीं, उसको विलन बनाया गया। All the dramas and films you've done, what is your favorite character that you've played? क्या मुझे ऐसा लगता है जो आखिरी किया हुआ होता है हमेशा वही आपके अंदर एक छाप छोड़ा हुआ होता है, आपको अच्छा लगता है। आई लव डूइंग कॉमेडी। मुझे कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है, एज अ ब्रीदर। उसमें होता है कि आप उस स्ट्रेस वाले कैरेक्टर से निकल के आके यू स्टार्टेड एंजॉयिंग, आपको मजा आ रहा होता है, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई होती है। तो मैंने जितने भी कॉमेडी प्लेस किए मुझे बड़े अच्छे लगे। लेकिन since industry में you have to work serious and negative and on tough dark scripts to recognize, to get recognition, तो वो आपको करना पड़ता है, और वो करने अच्छी बात है, चैलेंजिंग होता है। एक और सवाल लूंगी ऑडियंस से, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप घर में भी इतने सीरियस रहते हैं जितना आप स्क्रीन पर लगते हैं? अभी कैसा लग रहा हूँ? प्यारे लग रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं। और प्यारे के अलावा मूड कैसा लग रहा है? तो घर पे भी ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, are you very chilled out all the time? I am chilled, लेकिन I have this curse called OCD. ADHD and OCD, सारे ABCDs। तो घर से निकलते हुए मैं पूरा घर ठीक करके निकलता हूँ। मैं घर में घुसता हूँ तो सबसे पहला मेरा ट्रिगर ही होता है कि मैं पूरा घर देखता हूँ कि उस तरह से था है जिस तरह मैं छोड़ के गया हूँ। अच्छा, इतनी? हाँ, ऐसा है। 2 साल का बच्चा भी है ना, उसने मेरा OCD मार के दफना दिया है।
मतलब मैं घर में घुसता हूँ तो जिस घर फैला हुआ होता है, फिर वो यूं खड़ा हुआ मुझे देख रहा होता है, हा सी I have destroyed your OCD, यूं खड़ा हुआ मेरा इंतजार करता है। That's because you make him fall off the bed. बदले ले तो ये करके ये देखता है, कहता है हाँ भाई कहाँ है तेरा OCD, अब बता कि क्वेश्चन है अपनी जगह पे कि नहीं है। Naveed, have to take a short break. Guys, don't go anywhere. We're having the best Gup Shup with Naveed. Be right back on After Hours. क्या जमाना होता था आर्केड्स का, लाइक वीडियो गेम आर्केड्स इतनी तो थप्पड़े खा के घर आया हूँ मैं उसके बाद। मेरे मामू गायब हुआ हूँ, कहाँ वो खेल रहा हूँ, पीछे से थप्पड़ पड़ रहा है, कौन, चलो घर। अब्बू मेरे सादे से आदमी थे, वो उस तरह के वायलेंट नहीं थे, मेरे मामू ने बहुत कूटा है मुझे तो। अच्छा। मामू वो आदमी होता था जिसका खौफ देते थे। Really? मामू बिल्कुल मेरे बाप की तरह है। अच्छा। He's alive, अल्लाह उनको सेहत दे, he's in Houston now shifted। तो वो वाला आदमी होते थे कि तुम नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, मामू को बता देते हैं। तो बड़ी अच्छा, मामू को बता देते। मामू से दोस्ती भी थी और मामू से डर भी था। अच्छा। तो वो वाले अब्बू और अम्मी जो थे वो इतने फॉर ग्रांटेड लेता था उनको मैं कि वो कुछ कहते भी नहीं थे। तो वो उनको पता था यार ये एक आदमी है जो लगाम डाल के इसको रखेगा। तो वो आर्केड से मुझे मामू ही पकड़ पकड़ के घर लाते थे। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहला मेरा जो वीडियो गेम है मेरे मामू ने ही दिलाया था। इफ यू रिमेंबर द सेगा मेगा ड्राइव, सेगा के बाद निंटेंडो एंड देन प्लेस्टेशन। हां, प्लेस्टेशन। Did you play Street Fighter? Who was your person? Blanca. I was Blanca. Blanca. This is one of the things my husband and I connected on because हम भी बात कर रहे हैं। में खेलता था, मैं बस करंट मारती रहती थी लोगों को। तो मैं जब आर्केड्स में जाके खेलता था ना, तो मैं ब्लांका का एंड, मुझे बस किसी तरह से भी एंड करना होता था। तो एंड में फिर उनकी स्टोरी आती है कि किस तरह से वो घर जा रहे हैं, उनका एक छोटा सा एक उनका क्लिप, हाँ उनका आखिर में क्लिप होता है, एक स्टोरी होती है कि किस तरह से वो इस गेम से आजाद हो गए हैं, उनकी जिंदगी क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। One more question from the audience. Two more questions from the audience. अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन और दोस्ती को साथ कैसे बैलेंस करते हैं? दोस्ती को ऐसे बैलेंस करते हैं, कंपटीशन और दोस्ती को। कंपटीशन तो है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में। क्या कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। उष्णा जो काम कर रही है वो उनके हिस्से का काम है और उसी को मिलना है। जो मेरे हिस्से का काम है वो मुझे ही मिलना है। हाँ, उसके लिए हमें स्ट्रगल, उसके लिए मेहनत और उसके लिए दिमाग बहुत खपाना पड़ता है। लेकिन जो उष्णा कर सकती है वो उष्णा करेगी, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, उस जगह किसी और को डालेंगे तो उस कैरेक्टर के साथ ज्यादती होगी। वो तो होता रहता है। हाँ, तो वो होता है हमारे यहाँ चंद पैसों के लिए और कन्वीनियंस के लिए वो ऐसे जगह चला जाता है कैरेक्टर के, आप कहते हैं ये क्या हुआ, मतलब ये तो मेरी बेइज्जती है कि मुझे ऑफर करने के बाद ये इसको दे दिया। या सॉरी, मैंने बहुत अल्फाज संभाल किए हैं, लेकिन ऐसा होता है और ये फीलिंग है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो ओके, इंटरेस्टिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। मतलब तो ये कंपटीशन तो डेफिनेटली है हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह होता है। आपके घर में भी होता होगा। आपकी बहन है, छोटी है, बड़ी है, कपड़ों में कंपटीशन होता है, देखा। कंपटीशन तो होता है। अगला सवाल किसका है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आप बताएं। ठीक है। आपके बचपन का यादगार मोमेंट कौन सा है, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ जरूर, एक ऐसा मोमेंट है जिसकी मेरे पास पिक्चर भी है। एक आलमगीर साहब का गाना था ना, अगर मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था, ठीक, वो मुझे गाना बहुत उनका था। हाँ, वो मुझे गाना बड़ा पसंद था। तो हम सिंगापुर गए हुए थे। सिंगापुर में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड सेंटोसा आइलैंड। ओके। तो वहाँ इंडियंस और लोकल्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक जगह था, हम वहाँ दाल चावल खाने गए हुए थे। तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस थे। मुझे पता है क्या, मैं छोटा सा था, हमारे माँ बाप जो थे ना, हमें जलील कराने के लिए हर जगह आगे कर देते थे। तो बेटा गाना आता है ना, सुनाओ वाला, डांस आता है ना वाला, दिखाओ ना करके, आंटी को करके दिखाओ। हाँ, शाबाश दिखाओ। हाँ, उसको बुलाओ, अहमद को बुलाओ, अहमद आया पीछे, क्या, चलो बेटा गाना। अब अहमद की गर्लफ्रेंड छोड़ गई है उसे, वो डिप्रेशन में, वो मरने के 2 दिन दूर है। माँ बाप ने बुला के खड़ा कर दिया, बोला गाना सुनाओ, ए जवां सुना, ए जवां। तो आप गा रहे, आप ये करते, आप ये करते। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ ये किया था कि मुझे टेबल पे खड़ा करके, अब मैं भी शौक में, मैंने चश्मा लगाया काला, एंड आई वाज हार्डली 12 years old, और मैंने टेबल पे खड़े होके गाना गा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी गागर, और पूरा वो रेस्टोरेंट मुझे देख रहा है, तालियां बजा रहे हैं, इंडियंस, बांग्लादेशी, सिंगापुरी, सब मैं वहाँ वो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं लगा हुआ हूँ, मैं शॉर्ट्स पहना हुआ, टी-शर्ट पहना, और मेरे माँ बाप खुश हो रहे हैं कि यार देखो यार, वाह। तो ये वाली बेइज्जती में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
माँ बाप से ज़्यादा कोई प्लेटफॉर्म पे जलील हुआ And our parents are so good at this. yeah. I want to play a game with you. Oh, sure. Yes. You have to guess आंखें. आंखें? Yes. Oh, अच्छा है. इजाज असलम. इजाज असलम. Okay. इजाज भाई को तो हाथ लगा दे तो पता चल जाता. अबे यार क्या? अबे मैं तो पहले ही बोला. अभी मेरे साथ एक ड्रामा कर रहे हैं तो. एक मिनट. आयजा खान. मेरे साथ एक ड्रामा कर रहे हैं तो उसमें ना राबिया कुलसूम इनकी बीवी बनी हुई है और ये मेरे बड़े भाई हैं. तो वो एक हाथ सीन था जिसमें ना वो आके उसको यहाँ हाथ रखते तो उसका मुंह ही छुप गया ना यूं करके. फिर मैंने कहा इजाज भाई ये चाइल्ड अब्यूज है. प्लीज ये हाथ हटा ले. Can you do it जाजी भाई impression? हाँ. करें जरा. अबे मैं तो पहले ही आ गया था यार. तो टाइम पे शूट नहीं शुरू होती. इस तरह मैं काम ही नहीं कर सकता. मैं सुबह जिम जाता हूँ. मैं इतनी गर्मी में नहीं करता. जाओ भाई हटाओ इसको. इजाज भाई वो वाहिद एक एक्टर हैं जो आपको वॉइस नोट भेजेंगे ना तो वो 25-25 मिनट का वॉइस नोट होता है. उसमें सिर्फ नाराज हो रहे होते हैं आप. अबे तुम्हें चीजें भेजी थी तुमने वीडियो नहीं बनाई. चीज ली क्यों थी जब वीडियो नहीं बनाई. भेजते भी इतने प्यार से है ना. हिसाब देना होता है. इस तरह थोड़ी होता है. मतलब मैंने कहा इजाज भाई वापस कर दो. अबे नहीं वापस की बात नहीं है. अगली दफा नहीं दूंगा मैं तुम्हें. क्यूट गाय. क्यूट. ही इज वेरी क्यूट. अगली आंखें दिखाएं. ये कौन है? यासिन मुस्तफा. फहद मुस्तफा. Oh yes. यार I'm so bad at this game. फरहान सईद. Knowing eyes. Yes. आंखें पहचान. कितनी आंखों को देखा. आंखें पहचान लेता हूँ. Then next. ये मुश्किल है क्या? शगुफ्ता इजाज. हानिया आमिर. हाँ हानिया आमिर. हानिया. Yes. हानिया. सबक नादिया खान है. सबक नहीं नादिया है. नादिया. अल्लाह. Well done. It was such a pleasure having you on the show. यार पता ही नहीं चला कि हम शो कर रहे हैं. मुझे भी नहीं पता चला and I love that. But we need to catch up again. It was wonderful having you on the show. Thank you guys for being a great audience. मैं जाते एक चीज बहुत कहूँगा कि मैंने बहुत सारे शोज किए हैं. बहुत सारी चीजें की हैं. इस शो की एनर्जी इस द वे शी होस्टेड इट. आप लोग सब इसका कंटेंट बहुत मजेदार था. Oh, thank you so much. बिल्कुल नहीं पता वरना कुछ शोज में आप यूं करके टाइम देख रहे होते हैं. यार अभी तो आधा घंटा है यार. मतलब शुक्र है कि हुस्ना के पास वो वाले सवाल नहीं थे कि आपने बहुत सारा काम किया है. आपने बहुत सारे ड्रामे किए हैं. कौन से किए हैं? जी फिल्मों का तो पूछा मैंने. हाँ नहीं फिल्मोग्राफी मैंने पूछी. That was an interesting question. फिल्मोग्राफी मैंने पूछी. मैं बताऊँ one of the interesting shows of my life. Okay, how about this? Rate your favorite. Oh my God. या फिर अगर आप इनके बारे में कुछ भी चेंज कर सके तो क्या हो? थोड़ा सा शक्ल बना के कभी सेट पे कोई तल्ख हरकत ऐसी हुई है जो आप सारी जिंदगी नहीं भूल सके. ओह ये कुछ शोज होते हैं ना आप फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं एंजॉय करते हैं. I wanted to do that. Oh, thank you so much, Naveed. You've been a fantastic guest. I had the best time. I didn't have to work hard. I love it. I'll catch you guys next time on After Hours. Thank you.